Hello, students. Welcome to our discussion on electrostatics. This is part 4 of the series. I'm Harsh Kapil. So far, we have discussed about Coulomb's law, basic properties of point charges, and related uh, terms like conductivity, like those things. Those were discussed. However, when I taught you previous lessons, I told you specifically to revise your class 11th uh, some concepts like Newton's laws of motion, friction, circular motion, fluid mechanics. Okay, those things will be applied here. Okay, today I will take some examples. Even last class, in the last class also, I took some examples where Newton's laws of motion was discussed. Okay, vector. So those things will be coming back here, so make sure that you brush up those concepts and then come to this topic. However, I will try my best to get you a quick revision of those concepts as well. All right, so let's start. These are some institutional information where you can always get in touch with me for personal guidance program that I conduct, or any kind of problem that you are facing for competitive examinations like JEE, NEET, or class 11th or 12th physics. All right. And yeah, it's again extended the lockdown. So you got, take it on the positive side, you got more time to revise for JEE preparation for the April session that has probably gone till May, and I hope so. So keep revising, okay? Because if you don't do, somebody else is already doing it and doing it really hard. Okay, even a single mark make a big difference in your rank. You may be even out of the list as well. Make sure that you do. Okay, do slowly but keep doing it. Okay, stay safe, stay home, and keep learning online. Okay, so far we have seen about electric charge. Okay, how, what is electric charge, basic properties. Okay, you can revise these things by going back to the previous lectures that I have already uploaded. How do we charge different bodies? Okay, frictional electricity, and charging by conduction. Okay, I missed charging by induction. I will revise it in upcoming classes as well. Grounding, concept of grounding. Okay, that will be helpful in electric circuit, that we will discuss further. Okay, these things were discussed so far. Coulomb's law that was discussed, that is really important to find out the force exerted by a charged particle, okay, on another charged particle located at different distance r. Okay, permittivity concept. Okay. What is the unit of charge, relative permittivity? These examples were discussed to get you a better idea about the vector form of the force between 2 point charges. Okay, just keep revising it. I also discussed the rod with linear charge density and how to find out the force exerted by the this rod, charged rod. Okay. This lower example, the second example down there, was discussed to help you understand about the friction, how is it applied in electrostatics. Okay, revise that. This was also a good example of Newton's laws of motion, balance of forces, as well as fluid mechanics. Now today we will bring another concept of electric field strength, electric field intensity. Both are same concept. Either you can call it strength or intensity, or just electric field. That is enough to understand what we are talking about. Okay, so when you have a charge, okay, an electric field is a region or a space around a charge or a system of charges within which other charged particle experience electrostatic force. Okay. Now,
Theoretically, electric field extends up to infinity, but practically it is limited to a certain distance, because beyond certain distance, even if you bring a test charge to detect the electric field, the physical instrument that we have developed so far won't be able to detect the electric field. So beyond that range, it is undetectable, okay, with whatever instrument that we have created so far. However, theoretically, it extends to infinity. Okay, what is electric field? Electric field is strength at a point in a electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a very small test charge, positive test charge placed at that point. This is the definition. Okay. However, you know the formula for of the force between two charges. All right. If you just divide the value of the charge, okay, then you will be able to find out the force exerted, sorry, the electric field strength at the another charge that you have divided. Okay, so this is the electric field that is equal to F by Q. Let me show you here. Simple. Okay, just divide the charge, you will get the electric field at that particular point charge. Just simple observe here. This is a point charge minus Q. Okay, this is a charge plus Q. Okay, if in case you need to find out the electric field by minus Q on plus Q, okay, you just simply write the formula by Coulomb's law. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. You know the direction. Okay, now you are asked what is the electric field strength at plus Q by minus Q. So you will divide the charge plus Q in the force. Okay, that will be plus Q in the denominator here, and that will give you the electric field strength. That is a simple thing. However, by definition, there must be a very infinite small positive test charge placed at that point where you need to find the electric field strength. Okay, this is what by the definition. Okay, you see here electric field is equal to limiting charge to 0. Okay, infinitesimal charge, that, and multiply force on that point where the test charge is placed divided by the value of the charge. Clear? You can write it E is equal to F by Q. And electric field is a vector. It has direction. Okay, we will show you how does it look like in lines, okay, later. So it becomes as a whole, if you write it, E is equal to E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square into unit vector. Okay, in that direction. Okay, only thing missing is in this formula in Coulomb's law is the charge. Okay, the second charge that we have already divided. Okay, simple. It's very similar to the formula that we have already seen, force formula. Okay, now why do we take the very infinitesimal charge, very small charge? Okay, to find the accurate, almost accurate electric field strength at a particular distance, okay, if in case we bring a big charge, okay, then it will, you know, show its own strength. It will have its own electric field strength, so that will oppose the electric field strength of this charge, okay, that we are trying to find out the electric strength of. So we are bringing a very small, test charge that does not have, or that has very negligible electric field. Okay,
So because of this tiny charge, small charge, it it's the charge that we are finding the electric field, its own electric field strength will not be affected. सो इस छोटे चार्ज की वजह से इस जिस चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम ईजिली ये फॉर्मूला यूज़ करके, कौन सा, कूलॉम्स लॉ यूज़ करके उस पे इस चार्ज की, इस इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज की वैल्यू को डिवाइड करके सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था, उसमें हमें चार्ज से डिवाइड करना था। अगर हम बड़ा चार्ज लेते तो उसका इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट पड़ता, फोर्स पड़ता ज़्यादा, तो हमारी एक्यूरेसी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की वो इफ़ेक्टेड हो जाती है, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो अभी आप याद रखो, बस आपको ये फॉर्मूला समझने के लिए याद रखना, एट ए डिस्टेंस निकालने के लिए E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square, and this is having a vector sign, it has a direction, so unit vector, simple, like the force vector that we have already discussed. Okay, not much difference. Clear? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसको प्रॉपरली वेक्टर फॉर्म में, जैसे हमने उसको ठीक से कूलॉम्स लॉ को समझा था, इसको भी वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली समझ लो, क्योंकि आगे ये वेक्टर फॉर्म में काफ़ी काम आने वाला है। अभी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q प्लस क्यू, जो कि ओरिजिन O पे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा हुआ है इसको, प्लस क्यू चार्ज को, और कहीं एक इस एक्स वाई जेड फ्रेम में कहीं एक पॉइंट P है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, वहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लेके आ गए हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, प्लस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज, इनफाइनाइटेसिमल चार्ज लेके आ गए। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ के हिसाब, सॉरी, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से फोर्स लिख लेंगे। हमें लिखना आता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये तो अभी तक लास्ट क्लास में ही मैंने क्लियर कराया था, नहीं है तो आप 11th के चैप्टर से डिस्कस समझ के आइए। यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप फुल वेक्टर लिख रहे हो यूनिट वेक्टर की जगह पे, तो नीचे आर क्यूब आ जाता है, ये भी डिस्कस किया है। ठीक है, यूनिट देखो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे फुल वेक्टर लिखा हुआ है आर। ठीक है, तो ये हमने कूलॉम्स लॉ के हिसाब से प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट का, हमने फोर्स निकाल लिया। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, सिंपल उस चार्ज से डिवाइड कर दो, उतने डिस्टेंस पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आए हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पी पर निकल के आ जाएगी। डिवाइड किया तो हमारा ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अभी आप देखो इस लास्ट वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ई के फॉर्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सो at a distance r, the electric field strength is inversely proportional to r square. ठीक है, और proportional, it is electric field is proportionate to 1/r square. ठीक है, अब आपको मैथ के फॉर्मूले से याद होगा, अगर कोई एक वाई एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, आपका ये होता है ग्राफ। ठीक है, सॉरी, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। यहाँ पे y क्या है, ये है आप इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/x स्क्वायर मीन्स 1/r स्क्वायर। ठीक है, जब ये डिस्टेंस ज़ीरो होगा r, ओके, जब पॉइंट चार एकदम क्लोज लेके आ जाओगे प्लस क्यू के, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट वेरी क्लोज टू इट्स ओन place here, if you bring it here, then r will be 0, so it will be very infinite, okay, very high. So this is here, okay, and as you keep on increasing the distance, the curve goes like this,
Okay, this is curve of y is equal to 1 upon x square. You know it by your maths. Okay, simple curve. Okay, here q is positive. Okay, if in case the charge is negative, this becomes radially inward. Okay, this, let me show you here, this will be like this for a negative charge. All right, you don't, I mean, you just you must have some idea how the electric field varies, okay, by the distance. Okay, this gives you the electric field curve. Okay, if there is a plus charge, if there is a minus charge, okay, the curve remains the same, the way you have already learned in your maths classes. Okay, for positive test charge, for positive charge it's like this. Okay, and for a negative charge it will be on the other side, like this. Okay, now electric field lines. Okay, how does it actually look like? I mean, you won't be able to see it by your own, bare eyes, but it is what is observed. Okay, how do we draw it? Okay, फॉर अ पॉइंट चार्ज, यू नो दैट, आपको पॉइंट चार्ज के बारे में पता होता है कि ये अगर एक प्लस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये सब रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं और ये एरो ऐसे लगे होते हैं। ये तो भाई आपको पॉइंट चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप दो पॉइंट चार्ज लेके आ जाते हो, प्लस प्लस, प्लस माइनस, ओके, एक बड़ा प्लस, आई मीन एक बड़ा चार्ज लेके आ गए और एक छोटा चार्ज है, तब कैसे होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस हैं? So if you have to draw electric lines, okay, in presence of multiple charges, or to simplify, in presence of two charges of similar polarity or opposite polarity, then how do we draw it? We know how does it look like for a point charge. This is like this, and for a negative charge it would be radially inward, correct? We know it, that's basic. Now if you bring plus and plus charge like this, okay, you know that plus and plus charge, like charges, they repel, so this becomes like this. Okay, electric field lines becomes like this. Okay. They will be repelling each other. Okay, this half, let me draw it clearly. This half is like simple. Okay, this is going radially outward, okay, but little affected by the presence of the other positive charge. This particular half, where this was trying to go this way like this, it got repelled more. इस पे, इस तरफ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड पे, इस तरफ, इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो इसकी लाइंस निकल रही थी उस पर ज़्यादा फोर्स पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेंड हो जाती है ऐसे। और एक स्पेस ऐसा होता है जहाँ पर कोई एकदम वैक्यूम जैसा अपीयरेंस हो जाता है। यहाँ पर कोई भी आप फोर्स फील नहीं कर पाओ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती हैं पॉजिटिव चार्ज और सेम नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में, ऐसा केस होता है, ठीक है। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ डज इट लुक लाइक, रिपेल कर रहे हैं इसलिए ये बेंड हो जाती हैं और ऐसे 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 निकल जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ लाइक चार्जेस का। अपोजिट चार्जेस का क्या होगा, आपको पता है, अट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस से निकलेगी और एंड करेगी जाके माइनस पे, अट्रैक्ट कर रहा है भाई, करेक्ट है। बाकी सब सिमिलर रहता है, यहाँ पे ऐसा होता है बट अट्रैक्ट कर रहा है प्लस चार्ज माइनस चार्ज को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ऐसा ऐसा थोड़ा सा बेंडिंग फार साइड पे भी होता है, और नियर साइड पे ये डायरेक्टली फट से यहाँ से प्लस से निकला और माइनस में सिंक हो गया जाके लाइंस। तो दिस प्लस चार्ज वर्क्स एज ए सोर्स एंड माइनस चार्ज वर्क्स एज ए रिजर्वॉयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट होकर यहाँ पे सीधे चली जाती है, ऐसे ऐसे,
क्लियर है? अच्छा, कुछ बातें ध्यान रखना है कि ड्रॉ करते समय कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं बनाना है, कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है? ये चीज़ इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अभी बड़ा चार्ज होगा, देखो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता, अगर इसकी वैल्यू इस केस में तो यहाँ पे दोनों लगभग सेम है, क्योंकि लाइंस यहाँ से जितनी यहाँ से निकल रही हैं उतनी यहाँ पे जा रही हैं, जनरेट हो रही हैं, उतनी ही माइनस पे चली जा रही हैं। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर ये चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू की ज़्यादा होती तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट होती। ये देखो एक्स्ट्रा लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और एक्स्ट्रा लाइंस होती, और एक्स्ट्रा लाइंस होती, और वो लाइंस इस पे सिंक नहीं हो पाती, ठीक है? डेंसिटी यहाँ पे प्लस साइड में ज़्यादा होती, तो जितना बड़ा चार्ज उतनी ज़्यादा लाइंस उससे निकल रही होंगी अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और इफ़ दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज मोर लाइंस विल बी ड्रॉन, ओके, सिंकिंग टू दैट चार्ज, ओके। तो अगर ऐसा होगा तो उस पर ज़्यादा लाइन ड्रॉ कीजिए और थोड़ी सी लाइन जो है माइनस चार्ज की तरफ सिंक होते हुए दिखाइए, और बाकी लाइंस को बाहर स्पेस में जाते हुए दिखा दीजिए। इतना है, ठीक है? डबल द चार्ज, सो यू हैव डबल द लाइंस, ट्रिपल द चार्ज, देन यू हैव टू ट्रिपल द लाइंस। समझा? बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज़्यादा लाइंस, ठीक है? डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है? बाकी और कुछ इसमें है नहीं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है? आगे चलो। अच्छा, पॉइंट चार्ज हो गया, दो पॉइंट चार्जेस हो गए। अभी प्लेट, ओके, ये तो आपने पढ़ा भी है। प्लेट्स के बीच में अगर अगर एक प्लेट पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, और एक प्लेट पे ऐसे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तब इनके बीच में कैसे ड्रॉ होता है? देखो प्लस से निकला, इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करते सीधा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, यहाँ से निकला सीधा अपना चार्ज। यहाँ बाहर की तरफ जब वैक्यूम की तरफ होता है तो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, और ऊपर होगा तो और ऐसा बेंड होगा, बट दैट इज़ नॉट अवर कंसर्न कि पूरा ऐसा ड्रॉ करते रहो, नहीं। हम सिर्फ प्लेट्स के बीच में बात कर रहे हैं, तो सीधा ऐसा आपने देखा भी होगा आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, कि सीधा हम ऐसा बनाते थे, ठीक है? तो प्लस से निकला माइनस में जाता है, ठीक है? अगर इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है और पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया होता था, वी ए बी, तब क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद बताओ, हाई स्कूल में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है आपने, ई इजक्वल टू वी बाई डी, ठीक है? सो ये क्लियर है, इतना तो हम ऑलरेडी हमें पता है, बेसिक स्टैंडर्ड से हमने सीखा हुआ है। तो ये लाइन इसमें प्लेट्स के बीच में ऐसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ई इक्वल टू वी बाई डी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में वी दिया हुआ है या वी ए बी दिया हुआ है, और जो गैप है उनके बीच में डी है, ठीक है? बेसिक था ये तो, पढ़ा हुआ है, रिवाइज हो गया, दैट्स गुड, क्योंकि अभी इसके एप्लीकेशंस आगे हम देखेंगे। ओके, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में है, कम्प्लीटली दिया हुआ है। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अभी देखो ये सेम है, यहाँ पे जैसे था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, तो आर का पोजीशन वेक्टर इन्होंने ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, और ओ पॉइंट या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 0, तो कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं? पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, और 11th स्टैंडर्ड का है। क्या होगा? हेड माइनस टेल, याद है लास्ट क्लास का? हेड माइनस टेल होता है, ठीक है? सो यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड, ठीक है, फ्रॉम द टेल। और टेल के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 0 0 0, सो एक्स माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स, ओवरऑल पोजीशन वेक्टर विल बिकम एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, क्लियर? ऐसे हमें लिखते हैं। तो हमने वो जो आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये जनरलाइज फार्मूला है। अगर पोजीशन वेक्टर हमें पॉइंट पी के पता है, और ओरिजिन पे अगर आपका चार्ज दिया हुआ है जिसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, सो दिस विल बी रिटन दिस वे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दिस विल बिकम
दिस इज द फुल वेक्टर, ओके। सो इसका मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा तो दिस विल बिकम लाइक दिस। क्लियर है? इस तरीके से हमने कूलॉम्स लॉ जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो वेक्टर फॉर्म में जब हमने फोर्स लिखा था तो भी नीचे कैसे आर क्यूब हो जाता है हमने डिस्कस किया था। करेक्ट है? रिवाइज कर लो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक प्रिंसिपल आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, वो भी देख लो। वो क्या होता है? नाम तो सुनने में ऐसा लग रहा है दैट्स वेरी टेक्निकल, लाइक सुपर पोजिशन, सुपर पावर। नो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी इसका हमने एक प्रॉब्लम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रुको दिखाता हूँ, याद आ जाएगा तुमको। ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हाउएवर व्हाट वी डिड वाज कि हमने जब पॉइंट ए पर जो चार्ज था उस पर जब हमने फोर्स निकाला था, बाकी चार्जेस जो इस क्यूब के कॉर्नर पे लगे हुए हैं, पढ़ना जाके लास्ट क्लास का, उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट ए पे हमने सबका कूलॉम्स लॉ के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में सबको अलग अलग लिख दिया प्रॉपरली वेक्टर फॉर्म में। और नेट फोर्स आपको याद होता है कि हम कैसे करते हैं, समेशन करके डायरेक्टली फोर्स का, तो हमने सिंपल ऐसे निकाल दिया था। कोई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या कुछ ऐसा कुछ नहीं, सिंपल वेक्टर लिखा और वेक्टर का सम कर दिया, सिंपल हमारा आ गया था। अब यहाँ पर क्या है, हम उसी चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझते हैं कि हमने ऐसा करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, क्या मल्टीपल चार्जेस रखे हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, ओके, is the vector sum of electrostatic forces due to these other charges as if they are existing individually। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स बाकी अदर चार्जेस के द्वारा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक एक चार्ज को पकड़ो और उस पर्टिकुलर चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर इंडिविजुअली कूलॉम्स लॉ लगा के फोर्स निकालो, फोर्स वेक्टर निकालो और सबके द्वारा निकालो फोर्स वेक्टर कूलॉम्स लॉ लगा के और उनको वेक्टर सम में ऐड कर दो। ठीक है, यही किया था हमने इस प्रॉब्लम में भी। ठीक है, सिंपल हमने वेक्टर सम कर दिया था, सबका इंडिविजुअल वन बाय वन निकाला और वेक्टर सम कर दिया। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होगा, अभी मैं बताऊंगा, चलो एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा और। ठीक है, तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर फॉर्म में अगर आप फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो, तो उसका डायरेक्ट वेक्टर सम करो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, सबका कूलॉम्स लॉ। कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, इसका इफेक्ट कितना होगा, Q2 और Q3 का इफेक्ट कितना होगा, Q4 और Q3 का कंबाइंड इफेक्ट लगेगा क्या होगा, नहीं, इंडिविजुअल Q2 का Q1 पे कितना होगा, Q3 का Q1 पे कितना होगा, इंडिविजुअली निकालो, वेक्टर फॉर्म में निकालो और उनको ऐड अप कर दो। यही था, यही हम करा भी था और इसको हमने अब इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, चूँकि ये आपको पढ़ोगे तो आपकी बुक्स में, सीबीएसई की बुक्स में ये आएगा प्रिंसिपल, तो मुझे क्लियर करना था, बता दिया यही प्रिंसिपल होता है, नाम दे दिया गया है, कॉन्सेप्ट वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, इसको फिर से एक अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, कि 1 पर निकालोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर हो एन नंबर तक, तो उसको प्रॉपरली ये मैथमेटिकल फॉर्म में लगा दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज द्वारा खुद पर कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए ये बी इक्वल टू नॉट ए, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। समेशन करते समय जब बी का वैल्यू रखेंगे तो 1 से लेके n तक रखेंगे, Q1 चार्ज है लेकिन बी जो है ए के बराबर नहीं होना है। करेक्ट है, खुद के चार्ज अपने खुद पर फोर्स नहीं लगाता है।
ठीक है। सो सिर्फ एक्सेप्ट दैट चार्ज, यू हैव टू जस्ट इंक्लूड रेस्ट ऑफ द चार्जेस फोर्स। ओके, बाकी उसको वेरी करके बता दिया है कि अगर Q1 की जगह पे Q2 हो तो फिर क्या चेंज होगा, B=1 तो होगा लेकिन B=2 नहीं होगा, 3 to 5 होगा, ये करके बता दिया है। वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ए मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज़ गिवन। बट बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियोज़, न्यूटन्स लॉज में सब में समझाया है कि कभी रट्टा मारने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि बार बार ये आपके आएगा, आप कंफ्यूज मत होना क्या होता है सुपरपोजिशन और ये पोजीशन और वो पोजीशन। ये है दो चार्जेस दिए हुए हैं Q2 और Q3, और Q1 चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा, आप सिंपल वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ लगा के फोर्स निकाल दो, इसका फोर्स निकाल दो, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि लाइक चार्जेस है तो रिपल कर रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, आप वेक्टर फॉर्म में आप जानते हो कैसे ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो वेक्टोरियली अपने इनको ऐड कर दिया है, ये देखो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन वेक्टर फॉर्म से दिया हुआ है। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट जस्ट INJ फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे समझा दिया है। फोर्स ऐड वेक्टोरियली ये लिखा हुआ है, ठीक है। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी इस पे एक अच्छे से एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये देख लो, अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, क्वांटिटी उनकी वैल्यू Q है, कूलॉम। ओके, ये ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD ए स्क्वायर है, इस पर Q कूलॉम के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे। अब इसका जो सेंटर है स्क्वायर का, उसके ठीक ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड एक पॉइंट P है, वहाँ पे कहते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन ब्रॉट जस्ट above the center of this square. Okay, and what is, how high is that point P? Height h from the center of this square. Alright, ये h हाइट है इसके स्क्वायर के सेंटर से ऊपर जो P पॉइंट है, वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, वी ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, and that charge has a mass m also, that is what is given in the problem। उस चार्ज का मास m है। अब बोल रहा है कि भाई बताओ कि ये बैलेंस में रहेगा तो what is the value of Q, all these charges, sorry, what will be the value of all these charges Q for this unit positive charge with a mass m to remain in equilibrium so that it doesn't fall or it doesn't escape away from this point, it is in equilibrium, it is in balance situation। कितना पॉजिटिव चार्ज Q Q Q इन चारों में होगा, ठीक है। वेरी गुड, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि यहाँ पर फोर्स बैलेंस तो होना है, क्लियर है, न्यूटन्स लॉ लगना है, फोर्स बैलेंस होना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस फिगर को जो बनाया है पिरामिड इन्होंने, उसको ठीक से क्लियर समझ लो। ओके, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो, ये तो स्क्वायर है बेस में, ठीक है, उसके सेंटर ओ के एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में P है पॉइंट, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है। कौन सा, AOP एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में है AOP, ये वाला एंगल, ठीक है, 90 डिग्री है। सेम COP, DOP और BOP भी होंगे, ठीक है। मैथ्स, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक फेज लेके चलो AOP वाला, ठीक है। ये देखो इधर हमने AOP वाला ले लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हाइट h दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना इस स्क्वायर के सेंटर से अबव ये चार्ज रखा था, ये दिया हुआ है, क्लियर है, वेरी गुड। इस स्क्वायर की साइड्स की लेंथ कितनी है वो भी दी हुई है, ए ए ए, ये सब चारों दिया हुआ है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में जो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया गया उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या है कि Q की वैल्यू, इन चारों चार्जेस Q की वैल्यू कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है बैलेंस्ड रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। वेरी गुड, क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे बड़ी चीज़ होता है क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, नहीं तो आप जितना भी टाइम आप सॉल्व करने में लगा डालोगे गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ में, वो वेस्ट होने वाला है। फिर क्वेश्चन समझ लिया, रिवाइज करके ठीक से समझ लो, फिर अपने कॉन्सेप्ट लगाओ। अच्छा, अभी हमने क्या किया, इसको हमने ऐसा ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया। अब हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये हमें सब सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये रिपेल करेंगे, इसका फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। वेरी गुड, क्लियर है ये भी। मान लिया हमने कि ये थीटा एंगल बनाता है इधर वर्टिकल से, ठीक है। तो हमें फोर्स F है, उसके कंपोनेंट ले लिए F साइन थीटा, F कॉस थीटा। अब हम ये पता है एक बात कि ये जो पॉइंट A की वजह से, क्योंकि चारों स्क्वायर की कॉर्नर्स पे लाइक चार्जेस हैं Q Q Q Q, ठीक है। इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है चारों की वजह से, ये देखो ये पॉइंट अगर यहाँ पे है, अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है, एफ साइन थीटा वाला। ए की वजह से एफ साइन थीटा इधर लग रहा है, बी की वजह से इधर लग रहा है, ठीक है, सी की वजह से इधर लग रहा है, ठीक है, डी की वजह से इधर लग रहा है, ठीक है। ये एफ साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, चारों की वजह से सेम लगने वाला है एफ साइन थीटा इस पॉइंट पी पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वैल्यू इनकी सेम है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू दीज फोर क्यू चार्जेस विल बी कैंसलिंग ईच अदर वन अनदर, ठीक है। सो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन पी ड्यू टू दीज क्यू चार्जेस, ऑल फोर चार्जेस विल बी जीरो। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म फोर्स, कोई डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। ओके, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो भाई नलीफाई हो जाएंगे चारों की वजह से। बचेगा क्या, एडअप क्या होगा, एफ कॉस थीटा ए की वजह से भी अपर डायरेक्शन में है, डी की वजह से भी अपर डायरेक्शन में आएगा, सी की वजह से भी अपर डायरेक्शन में आएगा, और बी की वजह से भी अपर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। वो एडअप हो जाएंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो ये देखो एफ साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया है, लिखा भी हुआ है, वही चीज़ मैं बता भी रहा हूँ। ये देखो सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उनका समेशन ज़ीरो हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो है ये फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है एफ पी ए, ठीक है, कूलॉम्स लॉ लगा के के इंटू क्यू इंटू वन, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू की वजह ए पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू है, सबकी वैल्यू क्यू है, क्यू इंटू वन अपॉन ए पी स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो ए पी का हम सॉल्व करके मैथमेटिक्स लगा के निकाल लेंगे ए पी स्क्वायर। और यही फोर्स वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज सबका है, एफ पी सी, एफ पी बी, एफ पी डी, फोर्स ऑन पी बाई डी। ओके, सो इस तरीके से हम लिखते थे, देखा था। तो ये सबकी वैल्यू सेम थी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, और ये मैंने दिखाया है कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑल द फोर्सेस, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में अब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो हो जाएगा 4 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ को एफ, दैट इज़ एफ कॉस थीटा, तो 4 टाइम्स एफ कॉस थीटा। अच्छा, मैंने कहा था कि जब फोर्स बैलेंस का हो, न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट हो, तो क्या हम करते हैं, फोर्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो एक चार्ज की वजह से, छोड़ो सारे चार्जेस की वजह से ये फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट पी पर बना हुआ है। पॉइंट पी पर जो चार्ज है उसके मास है m, तो वेट लगा कहाँ, नीचे डाउनवर्ड mg। सारे चारों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखो 4f cos थीटा ऊपर डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं है, इमेजिनेशन में कोई आ रहा है तो बताना भाई, मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। बस इतना ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे कैंसिल हो गए, अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया। बस ये दो फोर्स हैं। अब बैलेंस होने के लिए भाई अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे निकल आएगा,
क्यू का वैल्यू आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू यहाँ से रख दो, कॉस थीटा का वैल्यू एच और ए की फॉर्म में, देखो क्लियर करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एच दिया हुआ है, अभी मैथ्स लगाओ, ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, मैथ्स यूज़ करो, ए, ये है ए, ये हो जाता है √2a AC, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अंडर √2a, और ए ओ उसका हाफ होगा, ये उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 करो तो a√2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक मैथ्स यूज़ करो कि ये कैसे निकालना है AP, ठीक है, सॉल्व करके निकालो, करोगे ना, इतना तो हो जाएगा भाई। तो डिस्टेंस आपका जो AP का निकल आएगा, और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो इससे आपको Q का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्व करो खुद से, कोई प्रॉब्लम आता है तो लिखो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी तो सब मैथ्स होता है। कौन सा समझ में आ गया, कैसे क्या करना है, आगे कोई डाउट रहे तो बताना, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये हमने किया, देखो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसमें न्यूटन्स लॉज, मैथ्स, सब चीज़ें वापस आ रही हैं, तो रिवाइज कर लोगे 11th के कॉन्सेप्ट तो ईजी रहेगा, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम और देख लो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। एक ये देखो कि इसमें ये प्लेट दिया हुआ है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था प्लेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, प्लेट्स का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चार्ज है जिसका मास m है और चार्ज उस पर प्लस q है, ये वाला चार्ज, ठीक है। इसको इस प्लेट के मिडवे, मतलब बीच में, ये जो लाइन है बीच की लाइन, अगर ये टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में 2 सेंटीमीटर है, तो ये देखो ये डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस रास्ते पे यहाँ पे ऐसे फेंका जाता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड u के साथ में फेंक दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका इसको। अब वो कहता है, सवाल ध्यान से सुनो, अगर आप इस एक मास m को हॉरिजॉन्टली हवा में फेंकोगे, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कोई एंगल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ में नहीं बना रहा है, ज़ीरो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। अमीर प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे लेक्चर, ध्यान से याद करके देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जब इसको हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम याद आ रहा है, उसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होना है। हावेवर यू हैव टू अज्यूम कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा होगा कि ग्रेविटी को आप नेग्लिजिबल इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ है, देखो इस प्लस से माइनस की तरफ होंगी, अभी अभी हमने पढ़ा प्लेट्स के बीच में कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, ये इसको पुश करेंगी, ठीक है, प्लस चार्ज है तो प्लस साइड से माइनस की प्लेट की तरफ पुश करेंगी, क्लियर है। फोर्स जो होगा पुशिंग फोर्स होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। अब अगर आपको एक मास के ऊपर फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, A=F/m, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, A=F/m, सिंपल। अभी देख लो, अब फोर्स कितना होगा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ, E=V/d, अभी देखा हमने, सॉरी, ठीक है, E=V/d, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है ये। फोर्स कितना होगा, F=EQ, ये हमें पता है, पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, F=EQ, डायरेक्शन डाउनवर्ड, अभी डिस्कस किया, बताया, ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ पुश करेगा। एक्सेलरेशन A=F/m, ठीक है, F=ma वाला कॉन्सेप्ट, EQ/m आ गया। अब ये वो प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है जिसका रेंज आपको पता है, अगर ये स्केप ना करे प्लेट से, कंडीशन ध्यान से सुन लो, for this particle not to escape out of these plates, what will be the maximum velocity, what means, गिरने को तो ये यहाँ से यहाँ पर भी गिर सकता था, देखो यहाँ पे फेंका एक वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी गिर सकता था प्रोजेक्टाइल बनते हुए, थोड़ा सा और आगे भी गिर सकता था, थोड़ा सा और आगे भी गिर सकता था, बट वो यू मैक्सिमम पूछ रहा है, मीन्स
एकदम एज पे जाके गिरे, बाहर नहीं, देखो मैंने बाहर बना दिया, बाहर नहीं बनना चाहिए, एकदम एज पे जाके गिरे, जैसा मैंने बनाया है ये वाला, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे। मतलब अब जब प्लेट का लेंथ दिया हुआ है तो उतना ही इसका रेंज होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया ना। हाइट क्या होगा इसका, 1 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम हाइट होगा, वर्टिकल हाइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, उसको अप्लाई कर दो। एक्सेलरेशन पता हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। सिंपल, आपको नहीं भी आता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सॉल्व करो। मैंने उसमें बताया था कि फॉर्मूले रटना मत, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस जो डिज़ायर्ड है वो चूज़ करो और फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो। वही किया है। हाइट का फार्मूला दिया, एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी यू के साथ फेंका गया, तो वर्टिकली 0 वेलोसिटी हो गई इनिशियल। शुरू की जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो गया तो एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन पता है। ग्रेविटी अभी एज्यूम करो नेग्लिजिबल, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, टाइम क्या हुआ, टाइम मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक गिरने का। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का, फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है, डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो जो रेंज होगा सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है, तो यहाँ से टी इक्वल टू आर बाई यू, आर तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर का रेंज है, यू आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम निकल आएगा। जब टाइम निकल आएगा तो एच के फॉर्मूले में आप डाल दो, एनीवेज तो आपका यहाँ से यू निकल आएगा। यू सॉल्व कर लो 1 और 2 के इक्वेशन से, यू मैक्सिमम इतना आ जाता है, खुद से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप, क्या कि जब ये हिट करेगा इस एज पे, यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू तो यू ही रहने वाली है उस, क्योंकि फोर्स 90 डिग्री पे है उसके, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी व्हेन इट इज़ हिटिंग द प्लेट एट द एज। ठीक है, वहाँ पर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। क्लियर है, कर लोगे। एनीवेज, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक ये डिस्कस। ठीक है, एनीवेज सो वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड अगेन कीप रिपीटिंग, रिवाइजिंग योर 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम अगले चैप्टर्स में और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।